students, today is our lecture number 5 and in this lecture we will learn about the composition of two functions. As we have already went through the type of relations and the type of function, now it's the time to learn composition of functions. Let's start. In this we have, let us suppose f is a function from a to b and g is another function from b to c. लास्ट टाइम हमने एक फंक्शन किया था, अब हम दो फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं. f है जो a टू b मूव कर रहा है और g है जो b टू c मूव कर रहा है. हम बना लेते हैं पिक्टोरियल ग्राफ सा बना लेते हैं. लेट अस सपोज दिस इज योर सेट a b and c. So this is your set a b and c. So I assume 3 or 4 elements a b c, and in b let us suppose 1 2 3, and in c let us suppose x y z. I am taking a very easy example to understand this concept. Now this f is working from a to b, this g is going from b to c. Now like this the elements are mapped. Let us assume the elements are getting mapped like this. Now if my f is defined and if my g is defined, then what do you mean by composition of these two functions? Composition of these two functions is denoted by, the first composition is GOF, G operation F. It is denoted by GOF, GOF, and it is defined as, it will work as, what we have to do, we have to first apply the function which is near to x. G will remain as it is and f will get applied to x. Then after, when we get the values of fx, then g will apply on the values of fx. For example, this element a is getting mapped to 1. So if I want to find out the GOF of 1, the GOF of A, how I apply this composition? Keep the g as it is, keep my function g as it is, and first try to apply this f on A. F on A. Now, as we know that f is mapping A to 1, I will get g of 1. And what is my g of 1? G is mapping 1 to x, so I get x. Likewise, GOF of the next number is b. Obviously, I'll write it like this. Now, what is f of b? F of b is 2. The element b is getting mapped to 2. So f of b will be 2 and g of 2 will be y. And the last one, GOF of c, can be written directly as z. ये आपको समझ में आया कि कॉम्पोजिशन GOF कैसे वर्क कर रहा है. वो एलिमेंट्स किसके उठा रहा है? A के उठा रहा है और लास्ट में एलिमेंट्स किसके दे रहा है? C के दे रहा है. तो हम कह सकते हैं कि GOF कहाँ वर्क करेगा? GOF नाम का कॉम्पोजिशन विल वर्क फ्रॉम A to C. ठीक है. और अगर हमारे पास G यहाँ पे पहले हो जाता और F हो जाता यहाँ पे, तब एक और कॉम्पोजिशन मुझे मिल जाता FOG. ये भी अप्लाई कर सकते हैं. FOG किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा? FOG विल बी, F विल रिमेन एज इट इज और सबसे पहले क्या चीज अप्लाई होगी? G अप्लाई होगा X. एक और कॉम्पोजिशन हम क्या पढ़ सकते हैं? FOF. FOF का क्या मतलब है? FOF का मतलब है एक बार F को अप्लाई करने के बाद दोबारा उसी फंक्शन को अप्लाई करना. और GOG भी निकाल सकते हैं. एक बार G अप्लाई करने के बाद दोबारा से उसी फंक्शन को अप्लाई करना. तो ये 4 टाइप के कॉम्पोजिशन है जिसमें हमारा GOF और FOG सबसे
हम इसमें पहले क्वेश्चन करेंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज f is from R to R and g is from R. f(x) is cos x and g of x is x square. अगर इस तरीके से दो फंक्शन हमको गिवन है तो फॉग और गॉफ क्या होगा हमारा? फॉग निकालेंगे तो फॉग निकालने के लिए f सबसे पहले क्या अप्लाई करना है? g को अप्लाई कर देना है x पे। तो g को अप्लाई कर x पे तो मुझे क्या मिलेगा? x स्क्वायर है कि g क्या करता है? स्क्वायर कर देता है। सो f x स्क्वायर यानी g की जो इमेज रहेगी वो f के लिए एज अ प्री इमेज काम करेगी। So f of x square, f of x is cos x. So what will be f of x square? Cos of x square. ये हमारा आ गया f of g and g of f निकालना सेम है। We'll keep g as it is and we'll write fx. Now what is our fx? fx is cos x. So g of cos x. जैसे हमने g अप्लाई करा cos x पे, क्योंकि g is a square function, it will square the value of cos x. So it will be cos x square. Obviously you can see both cos of x square and cos x whole square, they both are different. So in general हमको क्या पता लगा? In general f of g is not equal to g of f. किसी किसी केस में सेम हो भी जाते हैं, but in general we can say that they are not equal. So this one is important. Let's see two very important properties of composition of two functions. First property is if f and g, f going from a to b and g going from b to c, both the function they are given to be 1 1, then it is said that gof is also 1 1. Second, if f and g both the function they are onto, then gof is also onto. तो ये straight away properties हैं। बोथ द फंक्शन जिनसे कॉम्पोजिशन बना है अगर दोनों 1 1 है तो श्योर एंड शॉर्ट है कि गॉफ भी 1 1 होगा, और अगर दोनों फंक्शन ऑन टू है तो गॉफ भी ऑन टू होगा। द मेन पॉइंट इज जो समझने को रहता है वो ये है कि क्या इनका उल्टा भी पॉसिबल है? क्या मैं ये बोलूं कि गॉफ 1 1 है, अगर मुझे गिवन है गॉफ इज 1 1, तो क्या ये मेरा मतलब ये है कि एफ और जी दोनों को ही 1 1 होना पड़ेगा? या अगर गॉफ ऑन टू है तो क्या मेरे दोनों फंक्शन को ऑन टू होना पड़ेगा? तो दिस वे स्ट्रेट वे तो ये प्रॉपर्टी है, दिस वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। बट हमको अदरवाइज वे में चेक करना है कि अगर गॉफ 1 1 है तो क्या मेरे ऊपर कंपल्शन है कि एफ और जी को 1 1 होना ही पड़ेगा? फॉर दिस वी हैव दिस वन एरो डायग्राम। इस फर्स्ट पार्ट को समझने के लिए ये एरो डायग्राम है। लेट अस सपोज दैट ए इज हैविंग 4 एलिमेंट्स, B is having 6 element 1 to 6 and C is having 5 elements 1 to 5. मैंने इसको इस तरीके से क्रिएट करा है कि 1 is mapping to 1, 2 to 2, 3 to 3 and 4 to 4. बट मैंने ना ये मेरा फंक्शन f है और ये मेरा फंक्शन g है, तो मैंने f को इंटेंशनली अपना 1 1 रखा है और g को मैंने क्या बना दिया जानबूझ के? g को मैंने ऐसे सिचुएशन ली है कि g मेरा मैनी 1 है, 5 और 6 को मैं 5 पे मैप कर रही हूँ, तो मैं इसको 1 1 ले रही हूँ और इसको 1 1 नहीं ले रही हूँ। लेट्स सी कि गॉफ कैसे रिएक्ट करता है। ऑब्वियसली गॉफ विल गो फ्रॉम ए टू सी। सो व्हाट विल बी गॉफ ऑफ 1? गॉफ ऑफ 1 वुड बी 1 is mapping to 1 and this 1 is again mapping to 1, तो 1 आ गया। गॉफ ऑफ 2 2 to 2 same. Gauge of 3 will be 3 and gauge of 4, let's see, 4 is mapping to 4 and this 4 is also mapping to 4. हमें बिल्कुल ध्यान से ये दिखाई दे रहा है कि गॉफ में 4 एलिमेंट्स ही ले सकता है, वो ए पे अप्लाई करता है, इन 4 एलिमेंट्स को वो 4 अलग एलिमेंट्स पे मैप कर रहा है, दैट इज गॉफ इज 1 1। तो मुझे पता लग गया कि ऐसे सिचुएशन में गॉफ तो 1 1 आ रहा है बट मेरा जी तो 1 1 नहीं है, तो कंपल्शन किस पे है? अगर गॉफ 1 1 गिवन है सो एफ मस्ट बी 1 1। जी पे जी
जी इज नॉट नेसेसरली बी 1-1, जी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है 1-1 होने के लिए, मैनी 1 होते हुए भी गॉफ हमारा 1-1 मेंटेन कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सेकंड मैं कंपल्शन देख रही हूँ कि अगर मुझे गॉफ को ऑन टू बनाना है या मुझे दे रखा है कि गॉफ ऑन टू है, तो क्या एफ और जी पे भी कंपल्शन आ सके। लेट्स सी विद दिस एग्जांपल। आई हैव 3 सेट ABC 1 2 3 4 1 2 3 4 and 1 2 3 are the elements of ABC respectively. Now A से B में मैपिंग जो F की जा रही है, let's see. Obviously it is a many one function, एक many one function ले लिया है और वो on to नहीं है, F is not on to. And G को हमने इंटेंशनली ऑन टू लिया है, कोई एलिमेंट मैंने यहाँ छोड़ा नहीं है, यहाँ पे 4 रह रखा है इसलिए F ऑन टू नहीं है, बट G मेरा ऑन टू है। तो हम देखेंगे गॉफ को ट्राई करके देखते हैं। गॉफ वुड बी A to C। नाउ गॉफ ऑफ 1 इज 1, गॉफ ऑफ 2 इज 2, gauge of 3 is 3 and gauge of 4 is 3. As we are talking about on to, तो 1-1 इस पे यहाँ नहीं जाएंगे। अब हमें पता लग गया कि G के ऑन टू, F के ऑन टू ना होते हुए भी, F हमारा ऑन टू नहीं है, फिर भी हमारा जो गॉफ आ रहा है वो ऑन टू आ रहा है, यानी गॉफ के ऑन टू होने के लिए F के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। तो इन दोनों एग्जांपल से मुझे ये समझ में आया है कि अगर मुझे गॉफ को 1-1 या ऑन टू होना है तो 1-1 होने के लिए क्या कंपल्शन है, किस पे कंपल्शन आ गई, F पे कंपल्शन है, F 1-1 होना ही चाहिए, G पे कोई कंडीशन नहीं है। और गॉफ के ऑन टू होने पे G ऑन टू होना ही चाहिए, F पे कोई कंडीशन नहीं है। ये दोनों ही रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम आई होप आप लोगों को ये समझ में आए। So dear students, all these discussions lead to our main topic, and that is the inverse of a function. First, let's see the definition. A function f from x to y is defined to be invertible. Invertible means as a function जिसका inverse exist करता हो, वही निकालना है आपको, inverse of a function ही निकालना है। So किस function का inverse exist करता होगा उसकी condition है that the function is defined to be invertible if there exists a function g. जैसे अगर f जो है x to y वर्क कर रहा है, so there must exist some function g which is working from y to x such that क्या कंडीशन दो फुलफिल होनी चाहिए, गॉफ must be an identity function on x and fog must be an identity function on y. As f will work first and f is working from x to y, that's why ix has come. और इसमें g is working first and g is working on y, that's why this iy, ix और कुछ नहीं है, ix is the identity function on x. और identity function क्या होते हैं, they will take the value and they will give the same value, 2 को 2 पे मैप करना, 3 पे 3 को मैप करना, इस तरीके से। तो अगर तो इन्वर्टिबल फंक्शन तभी माना जाएगा अगर g ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे और दूसरी चीज गॉफ और फॉग दोनों पे अप्लाई करने पे आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है देन दिस फंक्शन g इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ f। और कैसे लिखा जाएगा, f रेज़्ड टू पावर -1 लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगी, फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए, यानी कि फंक्शन इन्वर्टिबल जब होगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन हमने पहले भी पढ़ा है कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव जो फंक्शन होते हैं उनको बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। तो अगर आपको इन्वर्स फंक्शन निकालना है, किसी भी फंक्शन का डायरेक्टली इन्वर्स फंक्शन निकालना है, तो एक मेथड ये भी है कि आप उसको 1-1 ऑन टू प्रूव कर दीजिए, जिसका मेथड मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है। तो 1-1 और ऑन टू जब हम प्रूव कर देते हैं, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव जब हम प्रूव कर देते हैं, तो बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है और बाइजेक्टिव फंक्शन इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। और ये जो मेथड है ये कॉम्पोजिशन को यूज करके है, इसमें थोड़ा बहुत ऑन टू का भी केस आएगा, थोड़ा बहुत है क्वेश्चन इसमें,
बट ये गॉफ और फॉग भी इसमें अप्लाई करना पड़ता है. सो दिस इज द सेकेंड मेथड. तो वी हैव अ चॉइस कि हम वन वन ऑनटूनेस प्रूव कर दें तब भी हमारा काम हो जाएगा, या हम कॉम्पोजिशंस को यूज कर ले तब भी हमारा काम हो जाएगा. बेसिकली दोनों मेथड किस चीज के लिए यूज करे जा रहे हैं? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालने के लिए. तो लेट्स सी कि पहले हम इसको अप्लाई करके देखते हैं. तो हियर एन एग्जांपल. लेट्स सपोज देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू x एट y. y is defined and the function fx is from 4x plus 3. now हमको करना क्या है? अब g फंक्शन निकालना है, और ये हमने पहले भी कर रखा है कि एक ऐसा फंक्शन जो y टू x जा रहा है, ऐसा फंक्शन किस तरीके से निकाला जाता है? ऑनटूनेस पढ़ते हुए हमने ये काम किया था कि जहां पे भी fx लिखा हुआ हम क्या मान लेंगे? उसको y मान लेंगे. y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 हमारा फर्स्ट स्टेप था उसमें, और सेकेंड स्टेप था that x must be expressed in terms of y. तो हमने क्या करा? x कैसे हो जाएगा? 3 इधर जाएगा, y minus 3 by 4. Now in this case this x is expressed in terms of y as y minus 3 by 4. इसी को ही g फंक्शन माना जाएगा. तो we are assuming, अभी हम g को इनवर्स फंक्शन नहीं कह रहे हैं, अभी हम बस इतना कह रहे हैं कि there exists a function this जो b के एलिमेंट्स को a पे मैप कर रहा हो, सिर्फ इस तरीके से. और इस x को मैं यहाँ पे g of y भी बोल सकती हूँ. सो हमारे पास f भी है और हमारे पास g भी है. सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए FOG और GOF दोनों को ही कैलकुलेट करके यहाँ दिखा दिया है. दैट GOF इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी द आइडेंटिटी फंक्शन एंड FOG इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी आइडेंटिटी फंक्शन. यही चीज इस डेफिनेशन में कही गई है कि गॉफ और फॉग दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ रहे हैं, देन द फंक्शन इज सेड टू बी द इन्वर्टिबल फंक्शन. और जो ये फंक्शन आता है g of y, y विल बी द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन. ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन ये कह रही है कि गॉफ और फॉग अगर दोनों के दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आते हैं तब हमारे फंक्शन को इन्वर्टिबल बोला जाए. ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.